students, good morning. How are you all? So, in the last lecture, we completed our chapter number 1, relation and function. So, today I'm start a new chapter, which is chapter number 6, application of derivatives. Okay, students, I think you all are studied the chapter number 5. Okay, you all are already learned the chapter number 5, continuity and derivatives. So this chapter is depending on derivatives. So we use the formulas of derivatives or derivative in chapter number 6, okay, for solving the problems. So first, chapter number 6, application of derivatives. So first we show the some formulas which you are already familiar with them, because these formulas are already you are seen in 9th standard and 10th standard. Okay, so depending on that formulas, that means surface area and volume, the formulas on surface area and volume. So here first, don't forget me. So these all are formulas say to us that don't forget us. Okay, ये जो फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे लिखा है वो क्या बोल रहे हैं हमें कि हमें भूलना नहीं. ओके, सो हम भी उन लोगों को कह देते हैं कोई दिक्कत नहीं, हम आपको नहीं भूलेंगे. क्यों नहीं भूलेंगे? क्योंकि आपकी ज़रूरत हमें जो एग्जांपल्स, जो प्रॉब्लम्स होंगे ना, उसको सॉल्व करने में यूजफुल करेंगे. ओके, एंड यू ऑल आर फेमिलियर विथ दिस ऑल फॉर्मूलाज. ओके, बिकॉज ये जो सभी फॉर्मूलाज है वो आपको ऑलरेडी 9th और 10th स्टैंडर्ड में आ ही गए हैं. ओके, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो चैप्टर था उसमें. ओके, चलो तो सबसे पहले हम फॉर्मूलाज देख लेते हैं एक बार. एरिया ऑफ अ स्क्वायर, ऑब्वियसली सिंपल, लेंथ स्क्वायर, लेंथ इनटू लेंथ, एंड देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दैट मीन्स बॉक्स, rectangle box. I say a rectangle box, and in which the length and the breadth and the height try are not equal. Okay, जो लेंथ है और ब्रेथ है और जो हाइट है ना, वो तीनों एक दूसरे से इक्वल नहीं है, तीनों के वैल्यूज अलग अलग होंगे. ओके, चलो उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूब, दैट मीन्स अ स्क्वायर बॉक्स, which you all are know that. लेंथ क्यूब, ओके, क्योंकि जो उसका लेंथ होगा, जो ब्रेथ होगा और जो हाइट होगा, वो तीनों के जो मेजर्स होंगे वो सेम होंगे, बराबर ना. सपोज लेंथ 4 सेंटीमीटर है, ओके, सो हाइट भी 4 सेंटीमीटर होगी और ब्रेथ भी 4 सेंटीमीटर ही होंगे. सो दैट मीन्स लेंथ क्यूब. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, दैट मीन्स 2 पाई आर. एरिया ऑफ अ सर्कल, पाई आर स्क्वायर. अभी स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो एरिया ऑफ अ सर्कल है उसका आप डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू r. If you derivative the area of circle with respect to small r, then you get the circumference of circle. Here pi is a constant and the derivative of r square is a 2r. That means finally we get 2 pi r. Then volume of a sphere, that means 4 by 3 pi r cube. Surface area of a sphere, 4 pi r square. Similarly, if you derivative the volume of sphere with respect to r, then you get the surface area of a sphere. How? Because 4 by 3 pi is a constant and the derivative of r cube is 3r square. 3 both are cancelled, so finally we get 4 pi r square. Then volume of a cone is equal to 1 by 3 pi r square h. You all are know that. Surface area of a cone, pi r l plus pi r square. Pi r l plus pi r square. If you common out pi r, then you get pi r into bracket l plus r. And then curved surface area of a cone, CSA of cone is equals to pi r l. Area of a triangle, all are know that half into base into altitude. And then area of a equilateral triangle, that means root 3 by 4 x square. This is the most important formula for us. Okay, where x is the length of side. And finally surface area of a cube, that means 6l square, where l is the length of a
एज, लेंथ ऑफ एज। ओके, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो ये हमारे जितने भी फॉर्मूलाज है, ये सभी फॉर्मूला कहीं ना कहीं यूजफुल होगी, जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें कहीं ना कहीं इसका यूज हम करेंगे। सो दिस इज द important formulas. Please you write all these formulas, and I hope you all are familiar with these all formulas. Okay students, so this is the don't forget me. ओके, अभी हम जो देखेंगे वो हमारा टाइप नंबर 1 है। ओके, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये आप फॉर्मूलाज देख ले और लिख लीजिए। ओके, नाउ टाइप नंबर 1, which is rate of change of quantities. रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, इसका मतलब जो हमारी क्वांटिटी होगी बराबर, उसमें हमें चेंजेस होंगे, वो कैसे होंगे वो हमें देखना है। ओके, चलो तो सबसे पहले हम वो क्या है वो हम जान लेते हैं। फर्स्टली वी नो व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। सो लेट सी, वेन एवर वन क्वांटिटी वाई वेरीज विथ अनदर क्वांटिटी x satisfying some rule y is equal to fx, then dy by dx or f dash of x represents the rate of change of y with respect to x. चलो तो whenever one quantity y varies with another quantity x, इसका मतलब कि हमारे पास एक क्वांटिटी y है। ओके, वो y जो है क्वांटिटी वो चेंज हो रही है। ओके, वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। उसका जो रेट हो ना वो चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है? हमारे पास एक क्वांटिटी y है। ओके, तो वो y की क्वांटिटी है बराबर, क्वांटिटी y है, उसका रेट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और वो चेंज कौन कर रहा है? तो अनदर क्वांटिटी x। ओके, इसका मतलब क्या है? सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहूंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि हमारे पास एक फंक्शन y है। ओके, सो हम क्या करेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट dy by dx। ओके, सो द dy by dx इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। समझ में आ गया? एक्चुअली हमारा जो टॉपिक क्या है, हमारे पास एक फंक्शन y है। ओके, सिंपली समझिए। ओके, वी हैव अ वन फंक्शन y, देन वी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू दैट फंक्शन, सो वी गेट f dash of x, that means dy by dx. So dy by dx is called the rate of change of quantity. Okay, the rate of change of quantity, or I say rate of change of y with respect to x, or I say the rate of change of y with respect to x. इसका मतलब हम डेरिवेटिव जो करते हैं ना, हमारे पास फंक्शन y है। ओके, तो उसका हम डेरिवेटिव करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो वो क्या प्रोसेस है? वो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी की प्रोसेस है। एक एग्जांपल आपको मैं समझाता हूँ। मेरे पास y इज इक्वल्स टू, आई हैव सम फंक्शन, I take x square plus x. Okay, I take some function x square plus x. Now I differentiate this y with respect to x. देखो यहाँ पे y is equal to fx है, इसका मतलब y जो फंक्शन है वो x में कोई फंक्शन, सो मैंने x में कोई फंक्शन यहाँ पे लिया। ओके, I suppose some function in x. Okay, now I differentiate, or we differentiate with respect to x, then we get dy by dx. What is the dy by dx? The meaning of a quantity y differentiate with respect to x. Okay, a quantity y, okay, differentiating with respect to x, or I say differentiating y with respect to x is called dy by dx. और उसका आंसर हमें क्या मिलेगा? We all are know that the differentiation of x square is 2x and the differentiation of x is obviously 1. सो आप देख सकते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग में हमारा y इज इक्वल टू जो हमारा वैल्यू था वो क्या था? तो x स्क्वायर प्लस x था। आफ्टर डिफरेंशिएशन वी गेट 2x प्लस 1। कुछ आपको दिख रहा है क्या हुआ? यहाँ पे चेंजेस हुआ है ना, वैल्यूज में चेंज आ गया। सबसे पहले क्या वैल्यू था और डिफरेंशिएट करने के बाद क्या वैल्यू आया? ओके, तो ये जो चेंजेस हुआ है इसमें बराबर, ये जो आपको चेंजेस दिख रहा है ये बिटवीन ये दोनों के बीच में। ओके, सबसे पहले x स्क्वायर प्लस x था हमारे पास अवेलेबल, उसके बाद हमने डिफरेंशिएट करने के बाद ये वैल्यू हमने वी गेट दिस वैल्यू जो हमें मिला। ओके, सो ये जो वैल्यू हमें मिला, ये जो आपको चेंजेस दिख रहा है वो क्या है? तो चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। समझ में आ गया? सो इसको क्या बोलेंगे हम? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। और अनदर एग्जांपल इन अ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लेट y is equals to cos x. I take y is equal to cos x. Now differentiating with respect to x, so we get
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारा फंक्शन क्या था, cos x था। ओके, सबसे पहले स्टैटिक का फंक्शन हमने उसको क्या किया, डिफरेंशिएट किया, तो वो फंक्शन चेंज हो गया और उस साथ में क्या हुआ, नेगेटिव साइन हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे हम, चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। इसको क्या बोलेंगे हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, और सिंपली द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये देखो, ये वाई की वैल्यू है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, सिंपली समझिए कि जो वाई है, ओके, उसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जो हमारे पास वैल्यू वाई है उसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और हमारे पास एक फंक्शन वाई है उसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और उसके बाद जो हमें आंसर मिलेगा, ओके, आफ्टर डिफ्रेंशिएशन व्हाट वी गेट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। समझ में आ गया? सो ये हमारा नया टॉपिक है, यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, बराबर ना। ये दो एग्जांपल आपके सामने। सबसे पहले जो वैल्यू थी, बराबर, वो कैसी थी, और आफ्टर डिफरेंशिएशन आपको क्या वैल्यू दिख रही है। ओके, पॉलिनोमियल फंक्शन हो या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो और लॉगरिथमिक फंक्शन हो, जो भी फंक्शन हो, स्टार्टिंग में जो आपको फंक्शन मिले रहेगा और डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आपको फंक्शन मिलेगा, दोनों में काफी चेंज होगा। जमीन आसमान का फर्क आपको दिखेगा। एक जमीन में है तो दूसरा आसमान में होगा। समझ में आ रहा है? एक जमीन में तो दूसरा आसमान में होगा। समझ में आ गया? सो इसको हम क्या बोलेंगे, ओके, चेंज बोलेंगे। चेंज, द रेट ऑफ चेंज, चेंज हुआ, जो हमारी वैल्यू है ना उसमें चेंज आ गया। ओके, समझ में आ गया? ट्रिगोनोमेट्री में आप देखेंगे तो टोटली ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ही चेंज हो गया। सबसे पहले कौन सा फंक्शन था और डिफरेंशिएटिंग करने के बाद कौन सा फंक्शन हमें मिला। ओके, सो दीज चेंजेस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। आई होप कि आपको फर्स्ट टाइप वाला जो हमारा टॉपिक को आपको समझ में आ गया होगा। ओके, गॉट इट? सो सिंपली dy by dx which represents the rate of change of y with respect to x। मतलब जो हमारा y है उसमें चेंज आ रहा है, और वो चेंज कौन ला रहा है, तो क्वांटिटी x। मतलब इसमें x जो है, the x is a very important role, playing a very important role, okay, for these changes। जो यहाँ पे चेंजेस हो रहा है y में, y की जो वैल्यूज में चेंजेस आ रहा है ना, ओके, वो कौन ला रहा है, तो वो x ला रहा है। सो दैट मीन्स वी से दैट x इज अ वेरी प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। समझ में आ गया? सो दिस इज कॉल्ड, और ये हमारा फर्स्ट टॉपिक, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ओके, समझ में आ गया? Okay, so here we have a first sum depending on rate of change of quantities. Let's see example number 1. Find the rate of change of the area of a circle with respect to its radius small r when r is equals to 5 centimeter. कुछ समझ में आया? Find the rate of change of area of circle, that means capital A, area of a circle, that means capital A, with respect to radius, that means small r। so यहाँ पे हमारा जो y है वो क्या है, सर्कल एरिया है हमारा, that means y। ओके, ये हमारा y है, और ये हमारा विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस ये हमारा x है, बराबर। तो dy बाई डी एक्स के रिप्लेस में हमें क्या मिलेगा, dA बाई डी आर हमें मिलेगा। वी गेट dA बाई डी आर। ओके, सो कब हमें फाइंड आउट करना है, जब r इज इक्वल टू 5 होगा तब हमें dA बाई डी आर फाइंड करना है। मतलब जो हमारा एरिया है, एरिया ऑफ अ सर्कल, मतलब a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, उसको हमें किसके साथ डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस स्मॉल r। ओके, उसके बाद जो भी हमें आंसर मिलेगा उसमें r की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, r इज इक्वल टू 5 पुट करनी है। सो लेट सी आंसर। वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट area of a circle capital A is equals to pi r square. Now differentiating with respect to x,
differentiating with respect to small r, we get dA by dr is equals to pi is a constant and r square. The differentiation of r square is 2r. So finally we get dA by dr is equals to 2 pi r. But the answer is not complete because just we have to put the r is equals to 5 because the question is find the rate of change of area of a circle, okay, with respect to r. Okay, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. बट व्हेन r इज इक्वल टू 5 हमें बोला है ना, मतलब ये जो हमें वैल्यू यहाँ पे जो मिली है बराबर, ओके, वी गेट दिस वैल्यू. ओके, द लास्ट स्टेप इज जस्ट पुट द वैल्यू r इज इक्वल टू 5 इन दिस इक्वेशन. तो फाइनली therefore dA by dr at r is equals to 5 centimeter is equals to 2 pi into 10. So finally we get 2 pi into 5 is equals to 10 pi. And the unit is the unit of A, that means the area of a circle. The unit of area of a circle is centimeter square and the unit of radius is centimeter. That means centimeter square per centimeter. So एक सेंटीमीटर हमें क्या मिलेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर हमें यहाँ पे यूनिट मिलेगा. कैसे मिला, तो जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना एरिया, उसका हमें क्या मिलेगा, यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा. पर रेडियस से हमें क्या क्या डिफरेंशिएट किया, मतलब आर का जो यूनिट है वो क्या है, सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर. तो यहाँ पे एक सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा. सो फाइनली वी गेट सेंटीमीटर. सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1. समझ में आ गया कैसे करना है. सो आपको क्वेश्चन में जैसा भी दिया होगा, एरिया ऑफ सर्कल दिया है या एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन, सरफेस एरिया ऑफ कोन, जो भी आपको दिया है वैसे आपको चेंजेस कर दें. यहाँ पे हमें एरिया ऑफ सर्कल की बात की, इसलिए मैंने कौन सी फॉर्मूला यूज की, एरिया ऑफ सर्कल की फॉर्मूला यूज की और उसको मैंने क्या किया, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस स्मॉल आर, वी गेट dA by dr is equal to pi is a constant, r square, the differentiation of r square is 2r. So finally we get 2 pi r and finally we put the value of r is equal to 5 in last equation. So finally we get dA by dr at r is equals to 5 is equals to 2 pi into 5. That means 10 pi is your final answer. I hope you understand. कैसे करना है आपको समझ में आ गया होगा. सिर्फ आपको वर्डिंग पे ही फोकस करना है, कौन सी वैल्यू y है और कौन सी x है. ओके, मतलब कौन सी y को कौन से x के साथ डिफरेंशिएट करना है वो आपको समझना है. ओके, सो दिस इज योर एग्जांपल नंबर 1. ओके, सो अभी हमने फर्स्ट एग्जांपल नंबर 1 देखा. अभी नेक्स्ट है वो आपके लिए होमवर्क में एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस स्मॉल आर व्हेन r is equal to 3 सेंटीमीटर. नंबर 2, r is equal to 4 सेंटीमीटर. इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि अभी हमने जो सम किया है सेम वही है, पर यहाँ पे r is equal to 3 के लिए भी फाइंड आउट करना है और r is equal to 4 के लिए भी फाइंड आउट करना है. मतलब आप dA by dr फाइंड आउट करेंगे. ओके, उसका आंसर हमें क्या मिलेगा, 2 pi r मिलेगा. उसके बाद नंबर A, when r is equal to 3 सेंटीमीटर, dA by dr at r is equal to 3, जो भी आंसर आएगा वो. एंड नंबर B, when r is equal to 4 सेंटीमीटर, dA by dr at r is equal to 4 is equal to, उसका जो भी आंसर आएगा वो आपको लिख देना है. इतना सिर्फ आपको करना है. समझ आ गया, ये आपके लिए होमवर्क. चलो अभी हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 2. द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, दैट मीन्स V, ओके, is increasing at the rate of 9 centimeter cube per second. ओके, सो फर्स्ट लाइन में जो हमें एक इंफॉर्मेशन दी है, एक वैल्यू दी है, वो क्या है, वैल्यू dV by dt है. ओके, वो क्या हो रहा है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग. ओके, वो इंक्रीज हो रहा है. ओके, एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड. अभी आपको क्वेश्चन होगा कि जो V है, ओके, जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है उसका विथ रिस्पेक्ट टू T हमें दिया है डिफरेंशिएशन. ओके, वो उसका वैल्यू हमें दिया है. ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूब मतलब V, उसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू T मतलब dV by dt, उसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है. ओके, और दूसरी एक बात आप देख सकते हैं, यूनिट सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड. सेंटीमीटर क्यूब मतलब वो वॉल्यूम का क्या है, यूनिट है, और पर सेंटीमीटर है मतलब विथ रिस्पेक्ट सेकंड. सेकंड मतलब हम कहाँ यूज करते हैं, ऑब्वियसली टाइम में, टी में, बराबर ना. तो जो हमें फर्स्ट लाइन में जो दिया है
the volume of cube is increasing at the rate of 9 centimeter cube per second. That means we have given a dV by dt is equal to 9 centimeter cube per second. Then how fast is the surface area increasing when the length of an edge is 10 centimeter? Okay, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? सरफेस एरिया इंक्रीजिंग. ओके, हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, मतलब ds by dt हमें फाइंड आउट करना है. सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दैट मीन्स s इसका मतलब ds by dt हमें फाइंड आउट करना है. हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग. ओके, तो इंक्रीज हो रहा है. क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इंक्रीज हो रहा है. ओके, सो उसके लिए ऑब्वियसली टाइम ही लगेगा. विथ रिस्पेक्ट टू हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t. सो हमें dv by dt हमें दिया है, ds by dt हमें फाइंड आउट करना है, और एज का जो लेंथ है ना वो हमें दिया है. सपोज उसको हम x सपोज करेंगे तो उसका x इज इक्वल टू हमें 10 सेंटीमीटर. इसका मतलब x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होगा एज, लेंथ ऑफ एज. तब हमें क्या फाइंड आउट करना है? ds by dt हमें फाइंड आउट करना है. ओके, चलो सबसे पहले आंसर में जो हमें इंफॉर्मेशन दी है वो हम लिख देते हैं. हियर dv by dt is equals to 9 centimeter cube per second. Now let the length of an edge be x. Okay, तो जो लेंथ ऑफ एन एज है ना उसको मैंने x सपोज कर लिया. Therefore x is equals to 10 centimeter we have given. Now we know that सबसे पहले हम कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूब की. क्यों, वो आपको मैं अभी बता दे रहा हूं. वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू x क्यूब. ओके, डिफरेंशिएटिंग with respect to x with respect to t we get. ओके, मतलब हम क्या करना है? टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करना है उसको v को. सो वी गेट dv by dt is equals to 3x square and again differentiating x with respect to t, so we get dx by dt. इसका मतलब क्या है? x क्यूब का हमने ओके डिफरेंशिएट किया तो उसका आंसर हमें क्या मिलेगा? 3x स्क्वायर मिलेगा. पर अभी हमें x का भी करना है ना, समझ में आ रहा है? सो उसका भी हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? dx by dt. सो वी हैव द वैल्यू ऑफ dv by dt इज 9. सो पुट दिस वैल्यू वी गेट 9 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर dx by dt. सो फाइनली वी गेट dx by dt इज इक्वल्स टू 3 3 9. सो 3 by x स्क्वायर. सो ये हमें वैल्यू यहाँ पे मिली विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब. व्हाई वी यूज द फॉर्मूला ऑफ क्यूब? बिकॉज ऑफ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ dx by dt. ये वैल्यू हमने क्यों फाइंड की ये भी आपको अभी पता चल जाएगा. नाउ फाइनली वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दैट मीन्स s इज इक्वल्स टू क्या है इसकी फॉर्मूला? 6x स्क्वायर. ओके, इसकी फॉर्मूला क्या है? 6x स्क्वायर. सो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t we get ds by dt is equal to 6 is the constant and the derivative of f square is 2x. okay, चलो and again differentiating the with respect to t, so dx by dt. समझ में आ गया? हमें कौन सी वैल्यू ds by dt फाइंड आउट करनी थी. ओके, सो हम कब फाइंड आउट कर सकते हैं? जब हमारे पास dx by dt की वैल्यू होगी तब. और वो हमें वैल्यू कौन देगा? सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब की जो फॉर्मूला है ओके उस पर हमें ये वैल्यू मिलेगी dx by dt. अभी देखा ना, उसको हम रिजल्ट नंबर 1 देते हैं. सो पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन. सो वी गेट ds by dt is equals to 12x into bracket 3 by x square, because from 1 here the x-axis cancels, so finally we get 36 by x, the value of ds by dt. And
we have to find how fast is the surface area increasing when the length of an edge is 10 centimeter. That means the value of x is 10 centimeter. Therefore, ds by dt at x is equals to 10 centimeter is equals to 36 by 10. So finally we get 3.6 centimeter square per second. Because जो हमारा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है उसका जो यूनिट है वो क्या है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है. ओके, सो इसका जो यूनिट है जो न्यूमरेटर में उसका सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा और डिनोमिनेटर में टाइम है उसका जो यूनिट है वो सेकंड आएगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दिया है सेकंड में दिया है इसलिए. सो फाइनली द आंसर इज 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड. सबसे पहला मैं क्वेश्चन में क्या था, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट 9 सेंटीमीटर पर सेकंड. दैट मीन्स वी हैव गिवन dv by dt. Okay, the volume of cube, okay, differentiating with respect to t, that means dv by dt, which we have given in our question. Then we have to find how fast is the surface area increasing when the length of an edge is 10 centimeter. इसका मतलब कि जो x की जो वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर होगी ना, तब हमें ds by dt फाइंड आउट करना है. ओके, सो उसके लिए हमें कौन सी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो dx by dt की हमें जो है वो वी नीड द वैल्यू ऑफ dx by dt. वी वांट द वैल्यू ऑफ dx by dt. उसके लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, सो वी यूज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब की फॉर्मूला. वॉल्यूम ऑफ क्यूब v इज इक्वल टू एक्स क्यूब. वाई वी यूज दिस फॉर्मूला, बिकॉज वी हैव द वैल्यू ऑफ dv by dt. कैसे, क्योंकि हम ये जो फॉर्मूला है उसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, देन वी गेट dv by dt. ओके, एंड यहाँ पे हमें dx by dt मिलेगा. सो हम ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो इजीली हमें dx by dt मिल जाएगा. ओके, और ये वैल्यू हम यहाँ पे मिलेगा और वो हम कहाँ यूज करेंगे. सो फाइनली हमें जो फाइंड आउट करना है ds by dt फाइंड आउट करना है, उसमें हम ये वैल्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे, वहाँ पुट करेंगे. जैसे हम पुट करेंगे तो हमें 36 by x समथिंग हमें वैल्यू मिलेगा. और फाइनली जो x इज इक्वल टू 10 है वो वैल्यू जैसे हम उसमें पुट करेंगे तो फाइनल जो हमें फाइंड आउट करना था वो वैल्यू हम यहाँ पे मिल जाएगी. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. समझ में आ गया होगा आपको. ओके, सो एक बार शांति से देख लीजिए फर्स्ट. ओके, सो अभी हमने जो सम किया एग्जांपल नंबर 2 सेम एज उसके जैसा ही है, एग्जैक्ट सेम. एक्सरसाइज 6.1 का सेकंड है, वो आपको होमवर्क में करना है. सिर्फ डिजिट चेंज हुआ है, जो वैल्यू है वही चेंज है. यहाँ पे 9 था प्रीवियस एग्जांपल में, यहाँ पे 8 है. यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 12 है. सेम एग्जांपल. dv by dt हमें क्वेश्चन में दिया है, x की वैल्यू दी है, हमें ds by dt फाइंड आउट कर रहा है. ओके, चलो. और उसके बाद जो एक्सरसाइज 6.1 का 17 है, ओके, वो सम जो आज हमने फर्स्ट एग्जांपल किया था ना, फर्स्ट एग्जांपल 1 सेम एज उसके जैसा है. ओके, क्या फाइंड आउट करना है हमें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल with respect to its radius. That means we have to find dA by ds, dA by dr at r is equal to 6 centimeter. Okay, so ये दोनों आपको एक होमवर्क में कंप्लीट करना है. और आगे जो एक सम दिया था वो मतलब टोटल 3 सम्स आपको होमवर्क में कंप्लीट करने हैं. ओके, सो आई होप कि आपको चैप्टर नंबर 6 में मजा आया होगा, समझ में भी आया होगा और इजी लगा होगा. जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था वो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज वाला. ओके, सो इसी तरह हम जितने भी सम्स है ऐसे ही करेंगे. पर आपको क्या खास नोटिस करना है, आपको वर्डिंग पर नोटिस करना है. क्या हमें क्वेश्चन में दिया था, कौन सी वैल्यूज दी है, कौन सी नहीं दी है, कौन सी फाइंड आउट करनी है. ओके, सो वी हैव टू फोकस ऑन द वर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन. यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, इज इंक्रीजिंग मतलब यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमने देखा वो क्या था, तो क्वांटिटी y, ओके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x ऐसा दिया था. यहाँ पे ऐसा नहीं है. द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर, मतलब कि जो क्यूब है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. बराबर, एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड. मतलब यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब डिफ्रेंशिएशन किसके साथ करना है वो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया. इसका मतलब क्या है कि जो डिफ्रेंशिएशन किसके साथ किया, तो टाइम के साथ डिफ्रेंशिएशन किया. बराबर, मतलब इंक्रीज हो रहा है. बराबर ना, जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, ओके, वो इंक्रीज हो रहा है. बराबर ना, विथ रिस्पेक्ट टू टी. समझ में आ गया. सो ये दो हम आपको कंप्लीट कर देना है. आई होप कि आपको समझ में आ गया. नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे ज़्यादा एग्जांपल्स करेंगे. ओके, बस इसी तरह के एग्जांपल्स है. सिर्फ चेंजेस में यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब था तो वॉल्यूम ऑफ कोन होगा, वॉल्यूम ऑफ
कोन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ऐसे चेंजेस होते रहेंगे। ओके, सो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक ये 3 सम्स कंप्लीट कर देना। ओके, थैंक यू।